Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic for today is organizational structure, which is the chapter number 4, A2 Business Studies. The objective of this lecture is to understand the basic concept of organizational structure, the management staff, how the managers and the employees are linked together, the relationship between the management and the employees, how the authority, what is meant by the authority, how the authority could be passed from the top to the middle to the lower managers, how many levels of managers exist within the firm. So let's start with the basic definition of organizational structure. Topic number 1. Organization. What is meant by organizational structure? Basically, it is the structure. It is a formal framework in which the managers and the employees are joined together, are linked together, and how the authority is passed from the top level to the junior manager. It is actually an arrangement of lines, arrangement of authority, the process of communication, rights of managers and the employees, responsibilities or duties of employees and the managers. Organizational structure determines how the roles, power, responsibilities are assigned, controlled, and coordinated, and how the information flows between different levels of management. Uh, there are three levels of management exist within the organizational structure, most of them. The top level management, the middle level management staff, and the lower management, lower managers. So it is a system that outlines how different types of manager, how different types of activities are directed in order to achieve the goals of the organization. The basic purpose of designing that structure is to achieve the corporate objectives, corporate aims with the formal framework, with the help of a formal framework. What is meant by the departmental lines? First of all, we just look at a diagram. It is the diagram of an organizational structure. It means it has actually three levels of managers. Normally, board of directors, normally the board of directors. These people are called the board of directors. Top management इनको बोला जाता है. These are called the chairperson or the board of directors or the chief executive people. These are considered to be the most senior management staff. They are responsible for taking that type of decision which is implemented, which is taken for the whole organization, which is implemented for all areas of the organization. ये किसी एक सेक्शन के लिए डिसीजन नहीं होगा बल्कि पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन. Now the middle managers, like we have फोर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. नॉर्मली हमेशा से एक बात डिस्कस की जाती है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फोर फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं: मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स. रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ा गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये चार डिपार्टमेंट, दीज कंसिडर टू बी द मिडल मैनेजर. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर taking decision in their particular area.
अपने एरिया में अपनी ब्रांच या अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये डिसीजन ले सकते हैं, किसी दूसरे की ब्रांच या किसी दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट को इस तरीके से हाईलाइट किया गया, ये एचआर डिपार्टमेंट है और उसके नीचे मुख्तलिफ सब डिपार्टमेंट, इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है। इसके बाद जो लोअर मैनेजर्स, जिस जैसे कि आप कह सकते हैं कि सेल्स, सब डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो अपने एरिया के लिए सेल्स या रीजनल मैनेजर जो हैं ये लोअर कैटेगरी में आपको नज़र आएंगे। पर अगर आप इधर आ जाते हैं तो जो ऑफिस सुपरवाइजर्स या क्रेडिट कंट्रोल में अकाउंटिंग में बैठे हैं ये लोअर हैं। सो वी हैव थ्री layers of the management staff: layer of the organization, layer of the organizational structure and the types, levels। इन दोनों में डिफरेंस है। लेवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के सिर्फ 3 लेवल हैं: टॉप, मिडल और लोअर। देन नेक्स्ट हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। So how the organization charts, how the organization structure is built with the help of a diagram named as organizational chart। Organizational chart अभी recently आपने एक देखा भी है एक diagram के अंदर, this is called the organizational chart। Organizational chart shows illustrated, organizational charts are designed to illustrate the organizational structure। इसको आपको बनाना है, इसको आपको किसी जगह पे प्लेस करना है, तो these can be designed using the organizational chart। इसको पेपर पे, कंप्यूटर में भी ड्रॉ किया जा सकता है, इसको पेपर पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। What information that provided by the organizational charts? That organizational chart helps to illustrate different points. For example, the first one is the overall responsibility. Who has the overall responsibility? So the answer is the top management. The senior managers and the board of directors have the overall responsibility to organize all of the strategic functions of the organization. The top functions and board of directors are responsible for managing all these operations. It also shows the relationship between different employees, different department and different branches। कौन कैसे मैनेज है डिपार्टमेंट का, दूसरी डिपार्टमेंट या एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से कैसे कम्युनिकेट कर सकती है, किस लाइंस ऑफ अथॉरिटी पे कम्युनिकेट कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो आपको बताएगा। द वे इन विच अकाउंटेबिलिटी, हु इज अकाउंटेबल टू विच टास्क, the way accountability authority may be passed from the top level of the organization to the middle level and middle level to the junior। स्पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड के बारे में भी इस चैप्टर में डिटेल से बताया जाएगा। Formal channel of communication, how the instructions could be passed from different levels। नॉर्मली ये प्रोसीजर है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपने जूनियर यानी ब्रांच या डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ बात करते हैं, ये वर्टिकल टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन। और हॉरिजॉन्टल जब एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करेगा एंड दो these two managers have same authority, same level of organizational structure to exist करें, then they vertical communication और horizontal communication की example आएगी। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, दो वर्ड यहाँ पे सिखाए जाते हैं। सुपीरियर ऑब्वियसली मैनेजर सुपीरियर होगा एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट और उस एम्प्लॉय का आगे भी कोई सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट, जो इंस्ट्रक्शंस को सुनता है और इंस्ट्रक्शंस को मानता है, द पर्सन इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट। एंड द सुपीरियर, द सुपरवाइजर, मैनेजर, जो कि instructions, a person who pass the instructions to the employees, and the employee and the worker is answerable, accountable to that superior, that supervisor। क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली by looking at the organizational chart? Board of directors की relationship between different departments, the branches, how the authority responsibility could be passed, chain of command, span of control,
the communication channel, vertical and horizontal, and identification of the superior and the subordinate. So we divided the organizational structure, this concept in your syllabus, we divided that concept into two types of structure. We divided the concept of organizational structure into two types, hierarchical structure and the matrix structure. What is meant by hierarchical structure? हायरार्किकल स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है जो अभी जो कि अभी आपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर को देखा है। दिस इज कॉल्ड द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें आपको टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद टॉप में एक लेवल या दो लेवल, उसके बाद मिडल, या इसमें मेंशन नहीं किया गया जो फर्स्ट टू लेवल्स हैं वो टॉप हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टॉप पे वन है, उसके बाद मिडल है, या टॉप पे दो लेवल्स हैं। द पर्पस इज हायरार्किकल वेयर द organizational structure is divided into different layers of the organizational structure. आप देख रहे हैं कि टॉप पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टार्ट है, उसके बाद दो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बाद उन एम्प्लॉयज़ के अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, फिर नेक्स्ट लेवल है और फिर नेक्स्ट लेवल। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कहा जाता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया, हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू रिप्रेजेंट द वेरियस लेवल्स where the authority is passed from the top level of the organization to the junior level of organization. It can be designed according to functional। अभी जो आपको इस चैप्टर में मिला था, वो मैंने आपको बताया था कि वो एक ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फंक्शनल फॉर्म है, जिसमें 4 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को हाईलाइट किया गया था, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग और एच। इसको प्रोडक्ट वाइज भी किया जा सकता है, इसको कंट्री वाइज भी किया जा सकता है, इसको बिजनेस यूनिट वाइज भी किया जा सकता है। इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनीज विच हैव डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, डाइवर्सिफाइड बिजनेस यूनिट, तो आप देखते हैं कि मदर कंपनी टॉप पे है और उसके बिजनेस यूनिट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, वो बाई प्रोडक्ट बिजनेस यूनिट जो है वो बाई प्रोडक्ट मैनेज किया जा सकता है। उसमें बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शनल फॉर्म में, रीजन यानी कंट्री फॉर्म में या प्रोडक्ट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। वेरियस लेवल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया दोबारा से। It is where the different levels of the organization is organized, ranked, with few and few people at the top and more people at the lower level, in which responsibility, authority, uh, and the power is clearly specified, clearly allocated according to their standing position. पैरामेड की फॉर्म में इसको बनाया जाता है। ये टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होल्ड करता है और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स को पैरामिड की शक्ल में इसको डाउनफॉल में लेके आता है। बिल्कुल टॉप पे सीनियर मैनेजर्स हैं और बिल्कुल लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लाइन वर्कर्स कहा जाता है। ये वो लाइन वर्कर्स हैं जो बिल्कुल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये बिल्कुल लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं और उनके आगे सबऑर्डिनेट्स कोई नहीं, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बनाया जाता है। इमीडिएट सुपीरियर का भी मतलब समझ लेना चाहिए। इमीडिएट मैनेजर लाइक एक सबऑर्डिनेट के ऊपर मैनेजर है, लेकिन उस मैनेजर का भी कोई मैनेजर है, लेकिन उसका इमीडिएट सुपीरियर या मैनेजर वही है जिसको उसने रिपोर्ट बैक करना है। जो उसके मैनेजर है, he is not responsible for reporting to that manager। इमीडिएट मैनेजमेंट या इमीडिएट सुपीरियर का कॉन्सेप्ट, इसी तरह इमीडिएट सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट भी एक
सीनियर मैनेजर्स के लिए जो पूरी एम्प्लॉयज़ हैं पूरे फर्म में 500 एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द इमीडिएट इमीडिएट सबॉर्डिनेट उसका ब्रांच मैनेजर होगा। वो ब्रांच मैनेजर इज अकाउंटेबल टू आंसर टू द सीनियर मैनेजर। आगे ब्रांच मैनेजर के सारे इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स जो वो उनको डील करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल नॉट अलाउड टू डायरेक्टली डील। रिस्पॉन्सिबल कहना चाहिए, अलाउड तो वो हो सकते हैं क्योंकि वो फर्म के ऑनर हैं, लेकिन एक्चुअली द वे इज नॉट देयर। द फॉर इट इज़ नॉट अ फॉर्मल वे यही है कि वो ब्रांच मैनेजर्स को दे पास द इंस्ट्रक्शंस टू द ब्रांच मैनेजर्स एंड देन दीज ब्रांच मैनेजर्स communicated these instructions orders to the lower staff members, and these lower staff staff employees are accountable to the branch manager, and that branch manager is accountable to senior managers are accountable to the owner chairperson. Most of the businesses बताया गया, most of the businesses are organized in this way because इसमें सीनियर मैनेजमेंट की जो अथॉरिटी है वो कंपैरेटिवली दूसरे सिस्टम से बेहतर मानी जाती है। मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट अपने अपने फर्म को इस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में रहे। दे दे शुड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर ही उनको ये अलाउ करता है कि उस ये इस स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की फॉर्म में बैठें, सेंटर डिसीजन लें और जो ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स है वो उन डिसीजंस को फॉलो करें। So most of the businesses are organized using the hierarchical structure in which the authority has been passed from the top to the lower level of organizational structure. It is considered to be the role culture. If the role of everyone is clear, हर बंदे का रोल इसमें जो मिडिल मैनेजर है, मिडिल मैनेजर के अंदर सब जूनियर मैनेजर है, लोअर लोअर के अंदर एक एम्प्लॉई है, हर बंदे का रोल। एक बंदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है, the role of that person is very clear. That is called the role culture. One more meaning of role culture. Hierarchical structure में role culture का मतलब ये भी होगा that everyone is responsible to his or her role only. वो किसी भी दूसरे एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट के रोल में इंटरफेयर नहीं करेगा। नो सपोर्ट इज देयर, नो हेल्प इज देयर, नो इंटरफेरेंस इज देयर। ये भी इसका मतलब है। अपने काम से काम करेगा और किसी भी दूसरे के काम में कोई इंटरफेरेंस नज़र नहीं आएगी। दैट इज़ what is the purest meaning of role culture. And the specialization is also role focuses on the role culture, that everyone is focuses on its own work and not interfering, not contributing to the role of other departments. So it is very clear that the authority and the power holded by the senior managers, the role is very clear, and the concept of specialization of task by each employee. जिस तरह रोल कल्चर में आपने देखा कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस तो आपको नज़र नहीं आई, इसी तरह इस यही चीज़ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, बिकॉज देर आर वेरी लेस रिलेशनशिप between different parts of the department, different parts of the divisions, different parts of the department branches. It shows the lack, it can lead to a lack of coordination. डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में जो सपोर्ट और हेल्प होना चाहिए, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, जो हॉरिजेंटल लिंक्स होने चाहिए, हेल्प होनी चाहिए, वो इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो कि एक बहुत बड़ा लैग है। अगर एक डिपार्टमेंट को के पास कोई आइडिया, अगर एक ब्रांच के पास कोई अच्छा आइडिया है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर ये अलाउ नहीं करेगा और ना ही वो इसको इस आइडिया को दूसरी ब्रांचेस के साथ शेयर करेगी। इसकी काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश अप्रोच है क्योंकि वो आइडिया सिर्फ एक पार्ट में यूज़ हो रहा है और बाकी पार्ट्स में यूज़ नहीं हो रहा।
इवन स्ट्रक्चर अलाउ नहीं कर रहा, और जो ब्रांच है अगर उसके पास कोई आइडिया है तो वो स्ट्रक्चर की वजह से उसको शेयर नहीं करना चाह रहा। वो सिर्फ अपने ब्रांच की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में लगी है और आइडियोलॉजी बना के बैठी है। उसको बिजनेस की परफॉर्मेंस ओवरऑल इम्प्रूव करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑल्दो कि ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए कि अगर वो उस आइडिया को बाकी ब्रांचेस या हेड ऑफिस के साथ शेयर करे, दैट आइडिया वुड बी इम्प्लीमेंटेड टू ऑल ओवर द फर्म। सारी ब्रांचेस जब उस आइडिया पे काम करेंगी, बिजनेस को एज ओवरऑल बेनिफिट होगा। बट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ये अलाउ नहीं करता कि आप इसमें रिलेशनशिप्स को डेवलप कर सकें। सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है, this structure tend to suggest that it is only one way communication now, टॉप टू। और थोड़ा सा ऑटोक्रेसी आपको नज़र आएगी इसमें। टॉप से बॉटम तक बात की जा सकती है, बॉटम से टॉप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन इन सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट, तो इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन अलाउ होगी। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट या एक ब्रांच किसी न्यू टेक्नोलॉजी या मशीन के बारे में एग्री करती है, दूसरी ब्रांच एग्री नहीं करती, तीसरी ब्रांच एग्री करती है, फोर्थ ब्रांच इज़ नॉट एग्रीइंग ऑन बाइंग न्यू टेक्नोलॉजी। फ्लेक्सिबिलिटी जो रेजिस्टेंस है वो आपको नज़र आएगी इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि एक बात पे सारी ब्रांचेस और सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो एग्री करें और उस चेंज को बिजनेस के अंदर लेके आया जाए, दैट द चेंज could be beneficial to the should be beneficial to the whole organization, that is implemented to all। कोई भी चेंज किसी एक पार्ट में अप्लाई करना मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। अगर कर भी लेते हैं तो उस बेनिफिट देगा सिर्फ एक पार्ट को। हायरार्किकल स्ट्रक्चर की ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक ड्रॉबैक के तौर पर कंसिडर की जाती है। So matrix structure is designed just to reduce many of the problems related with the hierarchical structure। एक नया स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं आज हम। इट इज़ organizational structure that creates project teams and cut across traditional boundaries of functional department। इसकी एक डायग्राम आप देखें। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट वाइज अब हम मैनेज करेंगे। प्रोजेक्ट ए पे ये डिफरेंट काम करेंगे। ये जो लोग, ये जो लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं, ये दीज पीपल आर अराइव फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ब्रांचेस। हो सकता है कि एक फाइनेंस से आया, एक प्रोडक्शन से, एक एचआर से है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इट इज़ अ मैनेजमेंट टेक्निक फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी एक बंदा एक जगह पे काम कर रहा है, उधर भी वो आइडिया शेयर कर रहा है, किसी दूसरी जगह पे काम कर रहा है, उधर भी आइडिया शेयर कर रहा है। मिल के जो हायरार्किकल में प्रॉब्लम यही थी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में मिल के काम नहीं करते, आइडिया को शेयर नहीं करते। ये प्रॉब्लम हायरार्किकल की सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम आज हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट टीम दैट कट अक्रॉस द बाउंड्रीज। वो जो हायरार्किकल की जो दरमियान में बाउंड्रीज थी कि एक डिपार्टमेंट या एक ब्रांच दूसरे की हेल्प नहीं करती, उस बाउंड्रीज या उस चीज़ों को क्या किया गया, कट किया गया। एलिमिनेट, दिस इज डिजाइंड to eliminate many of the problems related with the previous structure। It cut across the departmental line। वो जो एक हेल्प और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं नज़र आया था, वो अब आपको नज़र आना शुरू हो गया, जो कि डिपार्टमेंटल लाइंस को कट किया गया और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग में ज्वाइन है, डिफरेंट ब्रांचेस के लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट डिवीजन से आए हैं, और एक टीम की फॉर्म में आइडियाज़ की शेयरिंग है, सपोर्ट है, सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, टीम वर्किंग है, कोऑर्डिनेशन है। इट इज़ टास्क और प्रोजेक्ट फोकस।
सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक ब्रांच का रोल हाईलाइट करना या एक डिपार्टमेंट का रोल हाईलाइट करना, इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द रोल ऑफ इंडिविजुअल or each branch or each department, it joined together a team of different people from different areas, and they are responsible for completing the task and the project successfully. Emphasize to place individual ability to the team ability, converted the individual ability to the team ability rather than maintaining their position in the hierarchy. लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, या वो प्रोजेक्ट जो हेड ऑफिस से दूर परफॉर्म करने, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको सजेस्ट किया गया। हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता ये नज़र आ रहा है। इसकी एक डायग्राम भी है, प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। सो द फर्स्ट बेनिफिट वो वन वे कम्युनिकेशन था, ये टोटल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम, getting across the boundaries between departments in a hierarchical structure. And the second benefit is actually the evaluation of this concept, the overall evaluation. There is less chance of people focusing on what is good for their own departmental. सिर्फ ये कि मैं अपनी ब्रांच के लिए सोचूं कि अच्छा, the feeling is replaced what is good for the project as a business as a whole, as a whole organization. This is the true concept. This is the evaluation. रादर इसलिए कि एक एरिया के बारे में मैं सोचूं, मैं मेरे पास अगर कोई एक आइडिया है that I have to share with the whole business. The feeling is replaced with the feeling of what is good for a business as a whole. उधर हायरार्किकल में क्या सोच रहा था, एक पार्ट, एक ब्रांच, एक डिपार्टमेंट के लिए क्या बेहतर है, इधर क्या सोचा जा रहा है कि एक बिजनेस के लिए एज अ होल क्या सोच रहा है। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट, दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अगर एक क्वेश्चन आता है कि हायरार्किकल मैट्रिक्स के बारे में लिखें, आप हायरार्किकल को सपोर्ट नहीं करते, मैट्रिक्स को सपोर्ट करते, तो उसकी इवैल्यूएशन में आप ये पॉइंट क्लियरली लिखें। द क्रॉस ओवर ऑफ आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट डिपार्टमेंट से आएंगे और क्रॉस ओवर ऑफ आइडियाज जो हैं वो आपको नजर आए, सोल्यूशंस नजर आएंगे, और इवन क्वालिटी इंप्रूवमेंट आइडियाज। दिस इज द रियल बेनिफिट। एक ड्रॉबैक, लेस डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, जो कि हायरार्किकल में बेनिफिट के तौर पे आपने पढ़ा कि एक पावर अथॉरिटी होल्ड बाय द सीनियर मैनेजर। ये एक ड्रॉबैक यहाँ पे, ऑब्वियसली बिकॉज द टीम्स आर एम्पावर्ड, द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू द टीम पीपल, टीम मेंबर्स, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक टीम को टास्क दिया जाता है, देन द टास्क वुड बी डेलीगेटेड टू अ टीम, and that delegation means that the team is responsible for the whole task without asking, without coordinating with the senior managers. So ये empowerment कुछ senior managers के लिए इसको adopt करना मुश्किल नज़र आता है। The passing down of authority to the junior staff is difficult for some managers. कुछ रीजंस भी बताई गई हैं इसमें कि हो सकता है कि दे कंसिडर दैट दे आर नॉट एज एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस या टीम का एक्सपीरियंस कम है, लैक ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट जो आ सकता है। तो मंडे के लेक्चर में हमने ये देखा है द डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड देन हायरार्किकल और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने सीखा। थैंक यू।